नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक सिंह हूँ। मैं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में डायरेक्टर पल्मोनरी मेडिसिन और लंग ट्रांसप्लांट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान में लंग डिजीज़ेस का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा मरीज़ लंग की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनकी लंग्स इतनी ख़राब हो जाती हैं कि वो दवा के देने के बावजूद भी उनको सिम्पटम्स चलते रहते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए लंग ट्रांसप्लांट एक ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरह से खुलता है और आज हमारे साथ ऐसे ही हमारे एक लंग ट्रांसप्लांट हुए हुए पेशेंट हैं श्री जो इनका 2022 में 2022 ट्रांसप्लांट हुआ था। आज हम उनसे जानते हैं एक पेशेंट के नज़रिए से कि लंग ट्रांसप्लांट से पहले वो क्या-क्या महसूस करते थे, लंग ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया, कैसे उन्होंने अपने आप को लंग ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया और ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए। तो आज हम बात करते हैं। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपको क्या दिक्कत थी, किन लक्षणों से आप सफ़र करते थे और आपकी लाइफ उस बीमारी की वजह से कैसी थी और आप क्या महसूस करते थे? ਅਸਥਮਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵਿਧਾਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਲੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। सो हरप्रीत, ये बताओ कि जब तुम पहली बार दिल्ली आए थे, उससे पहले तुम्हें कब पता चला था कि ये सांस की दिक्कत मेरे को है, क्या लक्षण रहते थे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव हो गए थे आपकी बीमारी की वजह से? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਪ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਇਨਹੇਲਰ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਡਿਊਲਿਨ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਟੀਮ ਲੈਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਲਗਮ ਰਹਿਣੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। तो इस सब के दौरान जब ये बीमारी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, परिवार का माहौल कैसा रहा करता था? ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਥਰੂ ਡੇਗਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। तो फिर इस सब चीज़ के साथ जब ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला, कैसे पता चला लंग ट्रांसप्लांट भी हो सकता है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨਤਾ 'ਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਂਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। तो
हरप्रीत जब हमारे पास आए थे तो ये काफ़ी बीमारी तो एक तरफ थी, लेकिन जो मैंने देखा कि पूरा परिवार एक तरीके से हताश हल्का-सा हो गया था कि अब क्या आगे है। तो काफ़ी हरप्रीत को समझाया। लंग ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में बहुत कॉमनली नहीं होता, जैसे इन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में होता ही नहीं है लंग ट्रांसप्लांट। तो हरप्रीत ये बताओ कि जब तुम्हें समझाया गया कि ट्रांसप्लांट कराना एक ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट करा सकते हो, परिवार के बीच में किस तरह का डिस्कशन हुआ? क्या माहौल रहा परिवार के अंदर जब परिवार ने एक साथ बैठ के लंग ट्रांसप्लांट के बारे में आप लोगों ने बात करी? क्योंकि मुझे याद है कि जब आप लोगों को समझाया था तो लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सारी चीजें बताई थी कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो परिवार ने अपने आप को कैसे तैयार किया इस चीज के ਪਰਿਵਾਰ लिए? ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਣੇ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। क्यों मना कर रहे थे बाकी लोग? ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ को ਪਤਾ ਹੀ नहीं, ਜਾਗਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। तो आपने बताया कि करीबन आपको 14 दिन का इंतजार करना पड़ा इससे पहले कि आपको 14 ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 2022 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। तो जिस दौरान आप ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे थे, उस दौरान किस तरह की फीलिंग्स आपको आती थी? किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे इस ਫੀਲਿੰਗ ऑपरेशन ਇਹ के लिए? ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਜਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਉਦਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਉਹ क्या क्या ਉਹ- ख्याल आते थे मन में उस समय? ਉਹ ਆਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਤਾ ही नहीं गा, जिदा आम इंसान होंदा उदा ही मैं। तो हरप्रीत जी का जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के करीबन 36 घंटे बाद हरप्रीत जी होश में आए। जानते हैं कि जब ऑपरेशन के बाद होश में आए और जब मशीनों से हरप्रीत जी को हटाया गया, तो ये नई लंग्स के साथ सांस लेना में क्या फर्क था पहले की सांस और बाद की सांस में? बहुत फर्क है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ नहीं सकता ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या महसूस किया था जब पहली सांस बिना मशीन के नई लंग्स के साथ काफी ली? कई सालों बाद इदां दे सांस ले होने मैंने जब सर्जरी हुई। नहीं तो 24 घंटे पंप लेना, स्टीम लेनी, पौड़ी नहीं चढ़ होंदी सी, सीढ़ियां नहीं चढ़नियां किते। फिर उस तो बाद पता ही नहीं कभी हुण नॉर्मल कदे जिस तरह नॉर्मल जिंदगी लोग जींदे कोई है ही नहीं, साह की प्रॉब्लम खत्म हो गई सब। और ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन से उभर रहे थे, जब दोबारा अपने रिकवर कर रहे थे ऑपरेशन के बाद, उस दौरान के बारे में, उस पीरियड के बारे में थोड़ा बताइए। वो तो थोड़ा जिहा सर्जरी तो बाद हफ्ता 10 दिन तो थोड़ा औखा है। फिर हौली हौली जो जो दिन बीतते गए, वो फिर हौली हौली फील अच्छा फील होने लग पाया। बेस्ट कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ा था आपको? 23 दिन। 23 दिन। उसके बाद जब छुट्टी होके उस अस्पताल से निकल रहे थे, तो किस तरह के विचार थे? आए थे ऑक्सीजन के ऊपर, जब जा रहे थे तो किस तरह के विचार थे? ऑक्सीजन तो मेरे ख्याल हफ्ते 7 दिन बाद ही उतर गई थी। फिर मैं पौड़ियाँ उतर के जब मैंने छुट्टी मिली, मैं एक 2 मंजिल की सीढ़ियाँ जड़ी उतर के पैदल आप आया था, तो फिर मुझे छुट्टी हुई थी घर जाने की। और आज आपको ऑपरेशन हुए कितने साल हो गए? 3.5 साल। इस 3.5 साल में कैसा महसूस करते हो? क्या जिंदगी में बदलाव आए? ऐसी क्या चीजें थी जो ट्रांसप्लांट के बाद अब कर पाते हो? आप मुझे बता रहे थे कि आप मनाली घूमने गए। मनाली जाके आए 2 बारी, कश्मीर जाके आए 2 बारी, लाहौर सिटी जाके आए हैं, हुण कनेडा जाना। तो अगर मैं पूछूं कि ट्रांसप्लांट ने आपको क्या दिया, आपकी क्या इच्छाएं थी जो पूरी आप कर पाए ऑपरेशन के बाद?
ट्रांसप्लांट ने नया जीवन दिया। मेरा छोटा बेटा फ़ॉरेन में है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था फ़ॉरेन भी जाऊँगा। अब उसके पास भी जाना, फिर उसकी शादी भी करनी, कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। बड़े बेटे की जब शादी की तो उस टाइम मैं ऑक्सीजन पर था। सारा परिवार मेरे मुँह वाल देखता था, रो रहा था। अब सब खुशी-खुशी, सबको बेटा हुआ, उसके मेरा पोता हुआ, उसको देख के एन्जॉय करते हैं, खुशियाँ हैं घर में, दोबारा देखते सब परिवार खुश है अब। तो पोते के साथ खेलते हो, दौड़ते हो उसके साथ? हाँ। अब तो सांस नहीं फूलती। एक आखिरी चीज, क्या बोलना चाहोगे लोगों को, जिन लोगों को लंग ट्रांसप्लांट अगर वो करा सकते हैं या उनको ऐसी बीमारी है, क्या बताना चाहोगे ऐसे मरीजों को? जिस मरीज का भी लंग्स खराब है, जो कोई फोल्ड कर सकता है तो जरूर कराना चाहिए। इससे नया जीवन मिलेगा। परमात्मा की मर्जी है, 10 साल भी जिंदगी जी सकते हैं, 20 साल भी जी सकते हैं। तो आपकी केयर है, जितनी उसकी केयर करेंगे, ट्रीटमेंट टाइम से रहेंगे, चेकअप टाइम से कराएंगे, उतनी लाइफ दौड़ेगी आपकी। या नॉर्मल ज़िंदगी जी अपना काम कार करें। मैं 4-4, 500 किलोमीटर गाड़ी की ड्राइविंग करके भी जाता हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं का भी कोई। हुण भी मैं आया हूँ जलंधर से, तो कोई फ़र्क ही नहीं, कोई गड्डी चलाओ जो मर्जी। भावें तुसी मैं 10 किलोमीटर मेरे को तुसी सैर करा दो, मैं 10 किलोमीटर तुर के चल जाऊँगा। तो हरप्रीत मेरे को बता रहे थे अभी कि कुछ महीने पहले लाहौल स्पीति गए और परिवार के कुछ लोगों की ऑक्सीजन कम हो रही थी, पर हरप्रीत जी की मास्क लगाने के बावजूद भी ऑक्सीजन पूरी थी। नॉर्मल आराम से चल पाए थे लाहौल स्पीति में, कोई ਉੱਥੇ ਮੈਂ दिक्कत? ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਜਾਓ तो कोई गल नहीं। तो लंग ट्रांसप्लांट, जैसे हरप्रीत जी ने बताया, तो लंग ट्रांसप्लांट एक डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑप्शन है ऐसे मरीजों के लिए जिनकी लंग्स बीमारी की वजह से बहुत खराब हो गई हैं, वो ऑक्सीजन पर आ गए हैं। और कुछ भ्रांतियां हैं लंग ट्रांसप्लांट के बारे में, जो कि साक्षात हरप्रीत जी ने बताया कि वो भ्रांतियां ही हैं, वो सच्चाइयां नहीं हैं। और अगर हम लंग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, करा सकते हैं, तो हमें अपने मेडिकल टीम से, अपने डॉक्टरों से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। एज अ लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा कि लंग ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो इमरजेंसी में नहीं कराई जा सकती। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो इसके लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हरप्रीत जी का कि वो समय निकाल के हमारे पास आए और आप लोगों को लंग ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।